برانم ٹیبرنیکل جیفرسن ویل انڈیانا کی طرف سے عقاب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ صبح بخیر، آج 12 جولائی 2025 ہے۔ بس میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیسے عقاب اکٹھے ہو کر 1256 زبانوں میں ایک ہی وقت پر خدا کے کلام کو سنتے ہیں جو کہ ٹیپ پر ہے؟ ہم بغیر کسی انٹرنیٹ کے یہ جیفرسن ویل میں کرتے ہیں۔ وہ جاؤ اور بتاؤ کہ واٹس ایپ گروپ میں وہ جوائن کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس یوٹیوب ویڈیو کے نیچے دیکھ سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ پر ٹیکسٹ بھیج سکتے ہیں اس نمبر پر +1 502 599 0020 اور میں آپ کو لنک بھیجوں گا تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑ سکیں۔ ہر ہفتے سیرا وسٹا تمام موجودہ زبانوں میں اتوار کا پیغام اپلوڈ کرتا ہے۔ اب برادر جوزف برانم۔ اے یسوع مسیح کے خاندان، کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جو آج سے پہلے دلہن کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ وہ چیزیں جن کے متعلق ہم نے بہت دیر پہلے سنا تھا اور جن کو دیکھنے کے لیے ہم منتظر تھے، وہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو گئی ہیں۔ روح القدس دلہن کو متحد کر رہا ہے، جبکہ اس نے کہا تھا کہ وہ ایسا کرے گا اس مہیا کردہ رستہ کے وسیلہ جو کہ آج کے زمانہ کے لیے ہے، اور وہ خدا کی آواز ہے جو کہ ٹیپس پر ہے۔ وہ اپنے کلام کو اس طرح سے ظاہر اور ثابت کر رہا ہے جیسا اس نے پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ یہ بالکل فواری کنویں کی طرح ہے۔ مکاشفہ ہمارے اندر اچھل رہا ہے۔ اب یہ مسیح اور اس کی کلیسیا کو روحانی ملاپ ہے، جبکہ جسم کلام بن رہا ہے اور کلام مجسم ہو رہا ہے اور مجسم ہو کر ثابت ہو رہا ہے، بالکل جیسا بائبل نے کہا تھا کہ اس زمانے میں ہوگا۔ یہ دن بہ دن پورا ہو رہا ہے۔ کیوں یہ اتنی تیزی سے سب ہو رہا ہے؟ ان ریگستانوں میں بھی چیزیں واقع ہو رہی ہیں کہ میں ان کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر روز ہی مزید اور مزید مکاشفت ہم پر اشکارا ہو رہے ہیں اور ہم پر ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جیسا نبی نے کہا، چیزیں بہت تیزی سے پوری ہو رہی ہیں جن کے متعلق ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جلال ہو، ہمارا وقت آ پہنچا ہے۔ کلام پورا ہو رہا ہے، جسم کلام بن رہا ہے اور کلام مجسم ہو رہا ہے، بالکل جیسا نبی نے کہا تھا کہ ہوگا، وہ اب پورا ہو رہا ہے۔ ہم ہی کیوں؟ کیونکہ ہمارے درمیان کوئی بھی آمیزش، کوئی بھی غیر یقینی آواز اور نہ ہی کسی انسان کی ترجمانی کی ضرورت ہے۔ ہم فقط پاک اور کامل کلام کو خدا کے منہ سے سن رہے ہیں جو کہ ہم سے ہونٹ سے کان تک بات کر رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وعدہ کیا گیا کلام جو کہ لوکا کا، ملاکی کا اور باقی سب کے لیے بھی جن کا آج کے دور کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، وہ سب مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا کہ ہم نے یہ اپنے کانوں سے سنا تھا، لیکن اب ہم اسے دیکھ سکتے ہیں ہماری اپنی آنکھوں کے وسیلہ۔ وہ خود اپنے کلام کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ہمیں کسی انسان کی ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ دلہن، یہ مزید اس سے سادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا ہی ہے جو کہ اپنی دلہن کے سامنے انسانی جسم میں کھڑا ہوا ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں، اور جو اپنا کلام خود ہی فرما رہا ہے اور اس کی ترجمانی کر کے اسے ٹیپ میں رکھ رہا ہے۔ کامل فرمودہ کلام خود خدا ہی کی طرف سے فرمایا بھی گیا ہے اور ریکارڈ بھی کیا گیا ہے، بس اسی لیے اسے کسی انسان کی ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا اپنی دلہن سے براہ راست ٹیپس کے وسیلہ بات کر رہا ہے۔ خدا ہی اپنے کلام کی ترجمانی ٹیپس پر کر رہا ہے۔ خدا ہی اپنے آپ کو ٹیپس کے وسیلہ آشکارا کر خدا ہی دلہن کو بتا رہا ہے کہ تجھے کسی انسان کی ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دلہن کو اگر کچھ چاہیے تو وہ میری آواز ہے جو کہ ٹیپس پر۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو آپ کھول سے نکلنا شروع کرتے ہیں۔ آپ اناج میں جا رہے ہیں، لیکن بیٹی کی حضوری میں پڑے رہیں۔ جو میں نے کہا اس میں ملاوٹ نہ کریں، جو میں نے کہا اسے چھوڑ نہ جائیں، کیونکہ میں سچ بولتا ہوں جہاں تک کہ میں اسے جانتا ہوں، جیسا کہ باپ نے مجھے دیا ہے۔
खुदा ने दुल्हन के लिए वाहिद कामिल रास्ता बनाया है और हमें हुक्म दिया है कि हमें वही करना है जो उसने हमें करने के लिए कहा है। ये कभी भी मुमकिन नहीं हो पाया, हत्ता कि आज भी कोई हैरत नहीं, कोई मजीद सोचना नहीं, ना ही कोई सवाल कि आया इसमें कुछ बढ़ाया गया है या कुछ कम किया गया है या आया इसकी तर्जुमानी की गई है। दुल्हन को फक्त एक ही हकीकी मुकाशफा दिया गया है कि टेप को चलाना ही खुदा का कामिल रास्ता है। फिर भी मुझे ये दोबारा कहने दें, मेरा मुकाशफा ये है कि यीशु मसीह की दुल्हन कोई और नहीं बल्कि दुल्हन वो खुदा की आवाज के अलावा और कुछ भी नहीं चाहती जो कि टेप्स पर है। लेकिन जब आप एक बार रूल कुछ वाक्य असल कलाम की सूरत में आप में आ जाता है, कलाम यानी यीशु, तो फिर भाई पैगाम आपके लिए कोई पोशीदा चीज नहीं है। भाई आप ये जानते हैं, फिर ये आपके सामने रोशन हो जाता है। ये मैसेज मेरे लिए मजीद छुपा नहीं है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब्बा तक यकसा है। तमाम आसमान और जमीन को ही यीशु कहा जाता है। यीशु ही कलाम है और कलाम में ही नाम है क्योंकि वो कलाम है। आमीन। तो फिर वो क्या है? तफसीर करता कलाम खुदा के नाम का ज़हूर है। खुदा अपनी आवाज के वसीला दुल्हन को मुत्तहिद कर रहा है जो उसने रिकॉर्ड की है और आज के लिए ज़खीरा की है, ताकि वो अपनी दुल्हन को बतौर एक यूनिट इकट्ठा कर सके। दुल्हन इसे देखेगी और पहचानेगी क्योंकि दुल्हन को इकट्ठा करने के लिए ये उसका वाहिद तरीका है। उसने ये आज से 60 साल पहले भी किया था ताकि हमें दिखा सके कि वो आज के दौर में भी ये सब कैसे करेगा। हम हुक्म के वसीला उसका एक चर्च हैं। अगर मैं चर्च जाने में यकीन नहीं रखता तो फिर मेरे पास चर्च क्यों है? हमारे पास ये पूरे मुल्क में है और जो कि गुज़िश्ता रात हमारे साथ हुक्म के वसीला जुड़े हुए थे। हर 200 मुरब्बा मील पर मेरा एक चर्च था। बहुत से खादमिन अपने चर्चेस को हुक्म या बराह रास्त सुनने के मुतालिक बताते हैं कि वही पैगाम जो कि एक ही वक्त पर इकट्ठे होकर सुनना ये चर्च जाना नहीं है। लेकिन उसने कहा था कि ये चर्च जाना ही है। वो आया फिर कलाम से वाकिफ नहीं है, या तो फिर वो उस लव लेटर को उस तरह से पढ़ नहीं पा रहे जिस तरह से इसे दुल्हन पढ़ती है। चर्च क्या होता है? आए देखते हैं कि ब्रदर ब्रैनम ने क्या कहा है कि चर्च क्या हो। और बहुत सारी जमातों के पास ये सहूलत मौजूद नहीं है जैसे आपको इस टैबरनेकल में मिली हुई है। फीनिक्स में भी ये सहूलत मौजूद है और जहाँ कहीं भी इबादत होती है ठीक ये सहूलत वहाँ मौजूद होती है और लोग कलीसियाओं में और घरों में जमा हो जाते हैं और इस सहूलत से फायदा उठाते हैं और वगैरह। ब्रदर ब्रैनम ने बिल्कुल सादगी से बताया कि लोग घरों में और तरह तरह की जगहों में इकट्ठे होते थे और ये हुक्म के वसीला उसका एक चर्च है। बस घरों में, गैस स्टेशंस में, इमारतों में खानदान इकट्ठे होते थे और उसके हुक्म के वसीला उसका एक चर्च बनते थे। आए मजीद थोड़े और लव लेटर को पढ़ते हैं। हम तमाम चर्चेस और जमात के लिए दुआ करते हैं जो कि इकट्ठी हुई है उस छोटे माइक्रोफोन के वसीला जो कि उस पार इस मुल्क से दूसरी जानिब वेस्ट कोस्ट में रखा हुआ है, हत्ता कि एरिज़ोना के पहाड़ों में भी और वहां से होते हुए टेक्सास के रेगिस्तानों में भी और वहां से ठीक ईस्ट कोस्ट की जानिब और पूरे मुल्क के शागिर्द खुदावन जहां भी वो इकट्ठे हुए हैं। यहाँ के टाइम से उनका टाइम बहुत फर्क है, लेकिन खुदावन हम ईमानदार आज रात बतौर एक यूनिट इकट्ठे हुए हैं और मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बस हुक्म पर होना और ब्रदर ब्रैनम को एक ही वक्त पर सुनना ये ईमानदारों का एक ही यूनिट है जो कि मसीहा के आने का इंतजार कर रहा है। तो बस हुक्म पर होना और ब्रदर ब्रैनम को एक ही वक्त पर सुनना ये ईमानदारों का एक ही यूनिट है जो कि मसीहा के आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन आप कहते हैं कि अगर आज आप ऐसा करते हैं तो फिर ये चर्च जाना नहीं है। ये गलत है, ये इकट्ठा जमा होना नहीं है जबकि हम उस दिन को करीब आता देखते हैं। ये चर्च जाना नहीं है। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें और आप इसका जवाब अपनी कलीसिया को देना। अगर ब्रदर ब्रैनम आज यहाँ जिस्म में मौजूद होते और आप हर इतवार की सुबह हुक्म के वसीला या ऑनलाइन बराह रास्त जुड़ने के वसीला उसे सुन सकते ठीक एक ही वक्त पर पूरी दुनिया में उसकी दुल्हन के साथ, तो पास्टर्स क्या आप
हुकअप पर ब्रदर ब्रैनम को सुनते या फिर आप खुद कलाम सुनाते? ब्रदर ब्रैनम बिल्कुल सादगी से बताते हैं कि आपका चर्च ही आपकी ड्यूटी है। अगर आप 60 साल पहले यहाँ होते और ब्रदर ब्रैनम की इबादत हो रही होती, लेकिन आपका चर्च उस इबादत में शामिल नहीं होता, लेकिन खुद इबादत करता, जो कि तब के काफी खादमीन ने भी किया था, तो फिर क्या आप अपने चर्च जाते या फिर आप ब्रैनम टैबरनेकल जाते ताकि आप ब्रदर ब्रैनम को सुन सकें? मैं आपको अपना जवाब देता हूँ। मैं बारिश में, बर्फबारी में या फिर तूफान में भी दरवाजे पर खड़ा रहता कि टैबरनेकल के अंदर दाखिल होकर खुदा के नबी को सुन सकूं। अगर मैं उस दूसरे चर्च जा रहा होता तो फिर मैं हर रात ही चर्चेस बदलूंगा। लेकिन वो खातून वो नहीं जानती थी कि आया उसकी छड़ी में ताकत थी या नहीं, लेकिन वो ये जानती थी कि खुदा एलिया में है बस, और वो वहीं पर था, वो अपने नबी में था। उसने कहा, जैसा कि तेरा खुदा जीता है और तेरी जान भी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगी। मैं आपको दावत देता हूँ कि हमारे साथ जुड़ें और हुकअप के वसीला ब्रदर ब्रैनम का एक चर्च बने इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर, जबकि हम खुदा की आवाज को सुनते हैं जो कि हमारे पास पैगाम को लेकर आती है। 65-1128 एम खुदा की वाहिद मुहैया करदा प्रस्तिश की जगह। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम।